आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आप लोगों के पास हर बार हम एक फैकल्टी को लेकर आते हैं, एक स्कूल से लेकर आते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास एक अलहदा गेस्ट आए हैं, अलग गेस्ट आए हैं, एक और शख्सियत आई हैं जिनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, इंट्रोड्यूस आपको कराऊंगा और रूबरू आपको कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं उनके बारे में कुछ बातें आपको बताता हूं, उसके बाद हम उनका वार्म वेलकम करेंगे और उनसे शुरू करेंगे अपने फेमस इंटरव्यू के सवालों का सिलसिला, जिनका नाम है मिसेस अंशुल शर्मा। Mrs. Anshul Sharma works as an in-charge for freshers hiring for a multinational IT company. She is an accomplished professional located in Navi Mumbai with a diverse range of skills and achievements. She has worked with prestigious organizations like NMIMS Universities, where she worked as Assistant Director Placements, Oracle Corporation, where she worked for campus recruitment, APAC, Z Education, etc., to name a few during her over 2 decades of cumulative working experience. She is a respected TEDx speaker, soft skill trainer, and public speaker. She is associated with Akashvani All India Radio for over 3 decades. Her commitment to empowering women is evident through the dozens of women empowerment programs she has conducted, leaving a lasting impact on countless lives. Beyond her professional achievements, Anshul is a prominent figure in the Women Power Global movement, serving as the Maharashtra in charge. Congratulations. Additionally, Anshul's love for adventure is evident in her participation in bike and car rallies, showcasing her as a passionate biker. She is a national level judo player. Over the years, Mrs. Anshul has touched the lives of more than 10,000 youngsters. अलग वो देखने में अभी उतनी कमाल है, उतनी खूबसूरत है, मतलब लगता नहीं है कि मतलब इतना सारे साल बीत गए। Imparting essential communication skills to help them excel in their personal and professional lives. Her dedication and contribution have been recognized with prestigious awards, including the Women Achiever Award felicitated by Dr. Kiran Bedi and the Pride of Navi Mumbai by Lokmat Media, 1000 Women of Asia by Women. The Higher Education Forum has also acknowledged her outstanding services in CSR, and various other organizations have honored her for her significant contribution to society. Her mantra of life: never come back to the situations, redesign, reinvent, rework and receive rewards. मैम, आपका बहुत वार्म वेलकम, यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ अभिनव, थैंक यू। और आपसे मिलके तो और खुश हो गई। वेलकम वेलकम, वेरी वेलकम। अब क्या इतनी सारी क्या है अचीवमेंट्स हैं, तो फिर मुझे भी लगता है कि मतलब अब क्या क्या तो अचीवमेंट्स के बारे में बताऊं, क्या बोलूं और क्या छोड़ूं, ये बिल्कुल वैसा है कि कहां से शुरू करें फसाना और कहां तमाम करूं। लेकिन अब क्या है कि शुरुआत तो करनी है, और जिस सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं तो मैं आपसे उसी सवाल की शुरुआत करूंगा। टेल अस अबाउट योर जर्नी हियर एट योर वर्क प्लेस। व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग हियर एंड हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज अ टीचर एंड ह्यूमन बीइंग? ओके, वंडरफुल। सो अभी जहाँ मैंने करेंटली मैं वर्किंग हूँ, इट इज एन IT मल्टीनेशनल बाय द नेम ऑफ क्वालिटी कियोस्क टेक्नोलॉजीज। और यहाँ पे मेरे को 6 months हो गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। Oh, great. और हियर आई एम हैंडलिंग द कैंपस रिक्रूटमेंट फॉर एंटायर कंट्री। और अभी तक आई हैव टेकन मोर देन 100 students whom we have hired. Oh, yes. They are going to join us on 23rd of this month. Oh yes, actually. Oh, so great. You have told me about that. This way, I am able to contribute to the lives of so many youngsters and providing them career aspirations and fulfilling their desires. So this is what I am doing. And इस कंपनी में लाइक क्वालिटी कियोस्क ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सो वी टेस्ट सॉफ्टवेयर्स ऑफ, इट इज क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, जहाँ पे हमारे क्लाइंट्स जो हैं, आप कोई भी बैंक का नाम लेंगे, सी फॉर HDFC, IDFC, ICICI, जो भी बैंक का नाम आपके माइंड में आता है, वो सारे बैंक्स हमारे क्लाइंट हैं। और माई ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड बाय गार्टनर ऑल्सो, विच इज वन ऑफ द most prestigious or authentic organization to award or quality assurance to the various organizations. So it's a survey and rating organization, Gartner. तो वहाँ से भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला है, उसका रिकॉग्निशन है। वाओ, या तो मतलब अब तो मतलब जगह एक नया कवर्ड लेना पड़ा होगा घर में, अवार्ड्स के लिए कम पड़ती होगी, मतलब इतने सारे तो अवार्ड हो जाते हैं।
नहीं, वो तो सब How you deal with it? बोलते हैं ना कि आप काम करते जाइए और ये तो सब सरप्लस है. हाँ, सरप्लस है, तो डेफिनेटली. इट इज रिकॉग्निशन और मोटिवेशन भी है डेफिनेटली कि वंस यू आर अचीविंग समथिंग एंड इट इज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय आउटसाइड पीपल, तो डेफिनेटली दैट गिव्स मोटिवेशन टू वर्क मोर एंड इट पम्प्स द एंथुसियाज्म आल्सो. Oh yes, oh yes. So definitely Well, it's nicely good explained, thing. मैम. और सेकंड क्वेश्चन यही है आपके लिए. What made you choose the field of soft skill training, public speaking? Because actually you are all the public speaker and TEDx speaker. How did you prepare yourself for this since school and college days? मतलब शुरू से ही ये प्लान था कि ऐसे ही करना है या करियर के कुछ और प्लान पहले शुरू में होते, तो what was that? नहीं, मेरा देखिए करियर प्लान जो था मेरा आईपीएस बनने का था. Oh wow. समहाउ वो नहीं हो पाया पॉसिबल, लेकिन देन मेरा रूट थोड़ा सा चेंज हो गया बिकॉज आई एम ऑलवेज अ गो गेटर, और बीइंग अ गो गेटर वट एवर कम्स टू माई वे आई ग्रैब द बेस्ट आउट ऑफ इट, और स्लोली ग्रेजुअली आई केप्ट मूविंग विद द लाइफ, और करते करते हो गया कि यस आई गॉट इनटू दिस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स. रीजन बीइंग समवेयर सी जो हमारे शायद वीकनेसेस होते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमें चैलेंज करते हैं, एंड द पीपल लाइक मी हु एक्सेप्ट द चैलेंजेस दे स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट. तो कहीं ना कहीं एज अ यंगस्टर मैं एक बहुत शाई नेचर्ड पर्सन रही हूँ, और आजकल बहुत बोलते हैं इंट्रोवर्ट भी रही हूँ मैं अपनी लाइफ में. लेकिन वो मेरे को पता लगता था कि ये एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आई स्टार्टेड प्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन पब्लिक फोरम्स. Oh nice. And that's how I got into this area of soft skill training. Yeah. Okay. So it was never decided, लेकिन ये gradually हुआ है. Gradually हुआ है. Okay. तो अब एक और important question है वो आपके लिए, ये है tell us about your inspiration for all of us. मतलब आपके कौन inspiration फिर रहे हैं, आपने किसको follow किया? डेफिनेटली. सो देखिए मेरे जो इंस्पिरेशन है वो तो शायद सभी के इंस्पिरेशन है. डॉक्टर किरण बेदी मैम, और जिनसे आप फाइनली मिले भी बाद में, क्योंकि आप आईपीएस बनने वाले थे, एक आईएएस अफसर सही मिली जी, तो उनसे आपको अवार्ड भी मिला. यस, उनसे अवार्ड भी मिला, और मतलब उनसे हमारा बहुत होता रहता है बातचीत थ्रू व्हाट्सएप एंड मैसेजेस. वो इंस्पिरेशन रही है क्योंकि मैंने उनको हमेशा देखा सिंस चाइल्डहुड. आई एम फॉलोइंग हर थ्रू न्यूज़. पर्सनली तो कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन न्यूज़ वगैरह में उनके बारे में बहुत पढ़ती थी, तो हमेशा देखा उनको किसी भी एरिया में डाला है वो हमेशा आउटशाइन किए हैं. और वो मतलब उनका लाइफ वाज ऑलवेज चैलेंज एंड शी ऑलवेज कॉन्कर्ड दोज चैलेंजेस. सो आई थिंक वो मेरे में इतना इम्बाइब्ड हो गया वो चीज़ कि आई स्टार्ट लाइकिंग हर लाइक एनीथिंग, और मैं उनको बहुत फॉलो करती थी. डेफिनेटली, एंड सो मच आर्टिकुलेट. मतलब किसी भी चीज के ऊपर मैं देखा, वो जब वो बताती हैं बहुत ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, उनके स्टैंड बहुत क्लियर होते हैं. एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल थिंग इज दैट. हाँ, तो उनका जो एक तो स्टैंडिंग फॉर राइटियस थिंग इज व्हाट इज द बेस्ट अबाउट हर. और शी नेवर डिटर फ्रॉम, इफ शी फील्स दैट दिस इज राइट देन शी विल डू ओनली दैट. डेफिनेटली. तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है. कुछ चीजें होती है ना जो आपके अंदर you have that in your genes. Oh, yes. So this is something I have in my genes since my birth. I always will go with the right thing. जो मेरे को उस टाइम पे राइट लगेगा. हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो राइट है उस टाइम पे, so आप वो स्टैंड लोगे. मैं उस पे स्टैंड लूंगी. Oh, wonderful. Nicely explained. Beautifully explained now this time. Okay. Can you describe your experience as a soft skill trainer? अब कुछ सवाल मैं लूंगा आपकी फील्ड से, और अभी फील्ड से इस बार ज्यादा सवाल हैं, वो आपके पर्सनल सवाल थे, अब ये फील्ड के, और उसके बाद आएंगे हम लोग फेमस रैपिड फायर राउंड पर. सो प्लीज टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस एज सॉफ्ट स्किल ट्रेनर. या एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है एज ए सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोग जब ट्रेन करते हैं तो हम सिर्फ ट्रेन नहीं करते, साथ में ट्रेन हो भी रहे होते हैं. right. क्योंकि whenever we are going into any such session, there are multiple people who are attending your session. और जब वो सेशन अटेंड करते हैं, जो उनसे इंटरेक्शन होते हैं और जिस टाइप के थॉट्स आते हैं, बिकॉज आई लार्जली ट्रेन स्टूडेंट्स फर्टर्निटी, तो मैं देखती हूँ उनके इतने ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं कि जो शायद कहते हैं ना वो हमारी सोच में भी नहीं है. इट इज नॉट इवन इन आवर वाइल्ड थॉट्स के हम लोग वो लेवल पे जाके सोचें. But then it gives a different perspective कि yes this is also another way. तो बहुत लर्निंग होता है whenever we are in such sessions, soft skill sessions में. लेकिन उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जो लगता है कि ये लाइफ का पार्ट है और जो हमको पता ही नहीं है. अनडिस्कवर्ड एरियाज जो होते हैं, जैसे आजकल का जो यूथ है, they are very वाइब्रेंट, they are much smart than us.
क्योंकि जो हम लोग की जनरेशन है उससे बहुत स्मार्ट है, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा है। क्योंकि जो अब तक टेक्नोलॉजी हमने अब देखी वो अभी शुरुआत से देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो इतनी कहते हैं ना, बिल्कुल इन दी क्विक टाइम दे डू थिंग्स जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज वन थिंग विच आई एम लर्निंग ऑन डे टू डे बेसिस व्हेनेवर आई एम इन सच सेशंस। और जो पर्सपेक्टिव है, नया पर्सपेक्टिव, दैट डेफिनेटली हेल्प्स मी टू ब्रॉडन माय ओन होराइजन। तो कहीं ना कहीं वो एक रीजन है कि जो मैं देखती हूँ कि मेरे जो हम उम्र जो फीमेल्स हैं, उनका थॉट प्रोसेस और मेरा थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट हो जाता है। रीजन बीइंग बिकॉज आई एम लिविंग माय लाइफ डे टू डे विद डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। नाइस। So, ये एक उस लकीर के फकीर की तरह नहीं फिलहाल सोच रहे हैं, ये अच्छा है। बिल्कुल। तो यू अपडेटिंग योरसेल्फ डेली। यस, ऑन डेली बेसिस। तो मैं अपने आप को, आई कॉल माई सेल्फ अ लाइफ टाइम स्टूडेंट, नॉट अ टीचर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि इस फील्ड के यू हैव टॉक्ड अबाउट द टेक्निकलिटी, टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, एंड स्पेशली विद दिस जनरेशन, Gen Z. So, how has the evolution of artificial intelligence impacted various industries, and what potential benefits and challenges does it present for society? मतलब is it a boon or curse, और सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त यही चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल चर्चा का विषय भी है ये, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखिए, जब हम लोग के टाइम पे गूगल नहीं था, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, जब हम लोगों को लेके मतलब स्कूल में हम लोगों को ले जाया गया था कंप्यूटर दिखाने के लिए, और हम लोगों ने सबने शूज बाहर उतारे थे और वो कंप्यूटर को कवर किया हुआ था। सो दैट वाज द एरा, and there was excitement also. करेक्ट। और कमिंग फ्रॉम देयर नाउ थिंग्स आर एट टिप्स. It Yes. all has been possible because of intervention of technologies, और artificial intelligence का तो इतना intervention हो चुका है लाइफ में कि आज की डेट में जो बच्चे हैं घर पे, पहले होता था कि वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते थे क्योंकि वो टीचर्स की बात सुनते थे। Yes, आज correct. एक और स्टेप आगे आ गया है कि आज वो ना टीचर की सुनते हैं ना पेरेंट्स की सुनते हैं, वो सिर्फ गूगल की बातें वो गूगल की बात सुनते हैं, इंटरनेट को सुनते हैं। राइट। तो ये जो एडवांसमेंट है डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल तो है, लेकिन साथ के साथ इसका दूसरा पहलू भी है, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यस, डेफिनेटली। और इस वक्त दूसरा पहलू ज्यादा परेशान कर रहा है, जो स्पेशली नेगेटिव पहलू है। बिल्कुल, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आजकल लाइफ क्या कन्फाइंड हो गई है टू हाउस। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी। यस, जॉइंट फैमिलीज हैं तो बच्चे घर में ही बहुत सारे मैनरिज्म या जो सॉफ्ट स्किल्स की जो हम बातें करते हैं, Yes. वो लर्न करते थे, विच नाउ दे आर लर्निंग ओनली थ्रू यूट्यूब और मे बी डिफरेंट सच चैनल्स। तो वहां पे उनको समझदारी नहीं आ रही, इंफॉर्मेशन तो आ रही है। सो नाउ दे आर इंस्टेड ऑफ लिसनिंग दे आर डिबेटिंग ऑन सच थिंग्स कि क्यों ऐसा है। दे अंडरस्टैंड कि हाँ क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन राइट क्वेश्चन करना चाहिए। वो क्वेश्चन करने का क्या तमीज है, किस लहजे में बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मिसिंग हैं, जो दोनों साइड में बोल रही हूँ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और उसका एक और डेंजरस पहलू भी है, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, कि वो यही अब इसके लिए एलन मस्क और स्टीव जॉब्स है, बाकी सारे लोग सब कह चुके थे इसके बारे में। एलन मस्क ने तो अभी स्पेशली दोबारा भी अनाउंस किया है, और बिल गेट्स ने भी कहा है कि अब ये एक मेन प्रॉब्लम आने वाली है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो पहले तो आपकी फ्रीडम गई, आपका सारा डेटा जाता है इनके पास। सेकंड, इसके ऊपर कोई ना कोई एक लिमिटेशंस लेकर आने चाहिए, और इसके लिए स्क्रीन राइटर्स ने भी यूएस में अभी की थी स्ट्राइक, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि हमारा कंटेंट कब चैट जीपीटी पर चला जाता है हमें नहीं पता चलता, और अगर कोई उसको यूज कर लेगा तो हम उसको सू भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई आपकी आवाज बना लेंगे, आपका चेहरा बना लेंगे, आपका एक स्पेशली उनके पास एआई वर्जन होता है, अगर उसके बाद आपकी फैमिली को कोई कॉल करे और उनसे डिमांड में पैसा मांगे, और आपकी जो कि आप नहीं कर रहे हो, स्पेशली कोई और सॉफ्टवेयर कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं किसी एक मुसीबत में हूँ, परेशान हूँ, मुझे प्लीज हेल्प कर दो, और आपकी फैमिली को पता नहीं चल रहा है क्योंकि उनको लग रहा है ये आप ही हो, क्योंकि वो आपकी वॉइस कॉपी कर लेंगे, आपका चेहरा मोरा वैसा बना लेंगे, आपकी पर्सनालिटी पूरी बनाकर एक आप ही का क्लोन तैयार हो जाता है जो आर्टिफिशियल है। एग्जैक्टली। सो द मेन प्रॉब्लम इज दैट। तो ये इस वक्त ज्यादा कर्स वाली बात है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? It should be the ban और मतलब लिमिटेशन ऑन इट। लिमिटेशन, डीप फेक वीडियोस आपने देखे हैं सारे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स लिमिटेशन और क्या रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कहीं ना कहीं। इसको जो अपना अभी इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे साइबर लॉ बहुत प्रोमिनेंट नहीं है।
जो भी लॉज के पेरिफेरी में आता है, इट इज ओनली विद द आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लॉ जो है, बट उस पे काम हो रहा है काफी स्पीड से, और आई एम श्योर वो आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल न्यूज में था, आपने भी सुना होगा आई एम श्योर, सचिन तेंदुलकर का यस वही डीप फेक, एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट। उससे पहले रश्मिका मंदाना वाला आया या सचिन का आया, और हर बार एक सेलिब्रिटीज के नए डीप फेक वीडियोस होते हैं जो उन्होंने कहा भी नहीं है। इट इज सो मच एक्यूरेट कि आप डिफरेंशिएट नहीं करते जब तक वो पर्सन ना बोल दे कि ये मैं नहीं हूँ। करेक्ट। तो सचिन तेंदुलकर के केस में तो उनकी डॉटर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। इट इज यू नो कमिंग टू दैट एक्यूरेसी लेवल कि जहाँ पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि क्या करें। तो अभी तो क्या है, जो टॉप प्लेयर है, जो सेलिब्रिटीज हैं, सिर्फ वो हिट हो रहे हैं। लेकिन एक न्यूज जैसा आपने भी बोला अभी कि एक बच्चे का ऐसी क्लोनिंग करके आवाज और वो सब उसके पेरेंट्स को भेजा गया था। जस्ट बाई चांस वो बच्चा उस टाइम पे उनको मालूम था कि घर पे है या कहीं, तो उन्होंने फोन किया तो दे कुड मेक आउट कि ये फेक है। अदरवाइज या पता ही नहीं है, क्योंकि देखो बच्चा ही, उसको समझ नहीं है, उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। It is not only about the age, but even people like us are getting trapped into it. Definitely. Artificial intelligence is so much dangerous. It is about that especially. It is क्योंकि देखिए थोड़ा सा मैं चीज को मतलब अपनी बात को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही हूँ यहाँ पे कि हम लोगों ने रामायण में देखा कि सीता का हरण हुआ। सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांगी थी। जी, okay. अगर शायद वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांगती तो वो एपिसोड नहीं होता। तो यहाँ पे भी हम लोगों को कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक लक्ष्मण रेखा नहीं ड्रॉ करेंगे तो हम लोग भी ट्रैप में आएंगे ही आएंगे, उसका कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। स्पेशली इसलिए कोर्ट ने भी स्पेशली कह दिया कि अब इस पर सुनवाई हो, चर्चा हो, और इसके लिए एक लिमिटेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज बाद में ये आपको कितना नुकसान पहुंचाएगा, यू डोंट नो, इवन यू डोंट हैव एनी आइडिया कितना आगे पहुंचेगा। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर? How was your experience? Definitely, my experience is very beautiful as a soft skill trainer. जो मैंने पहले भी मेंशन किया कि बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है डे टू डे बेसिस पे। और जो हम लोग सॉफ्ट स्किल्स की जब बातें करते हैं तो नॉर्मली जो एक परसेप्शन होता है वो है कि अगर मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो दैट इज आई एम अ गुड यू नो स्पीकर और गुड ट्रेनर। wherein we most of the times we miss out कि it is not only about the content what you are talking about, what you are presenting, it is more about how you are doing that. How you are doing that. तो जो how वाला part है ना, that normally we miss out. You're right. So you're right. understanding and learning that is you know a challenge. It is day to day basis challenge that one has to understand. और जहाँ से मैंने जब स्टार्ट किया था, आई स्टिल रिमेम्बर डे 1 ऑफ माई यू नो ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स। मतलब मुझे खुद इतनी घबराहट भी हो रही थी कि कैसे आई विल बी एबल टू मैनेज, बट जब एक बार स्टार्ट किया तो वो इतना स्मूथली हो गया कि आज आई एम येस वन ऑफ द फाइनेस्ट यू नो ट्रेनर इन द स्पेस। सेकेंडली जो टेडेक्स के लिए मुझे कॉल किया गया, तो आई थिंक इट इज एन अचीवमेंट इन या इटसेल्फ। So, तो उसको वाला कॉल आ गया, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट स्पेशली मैम। थैंक यू जी। ओके, व्हाट सॉफ्ट स्किल्स डू यू बिलीव आर मोस्ट क्रूशियल फॉर प्रोफेशनल सक्सेस? सो फॉर प्रोफेशनल सक्सेस I feel that emotional intelligence is one of the most crucial aspect that one needs to understand. Technical knowledge हम लोग गेन कर लेते हैं कहीं किसी भी मोड से, किसी भी सोर्स से, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस एक इंटरनल स्किल है जो इतना इजीली हम लोग यूट्यूब या किसी सोर्स से लर्न नहीं कर सकते। इट इज वन हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड देन लर्न दैट स्किल। हाँ, क्योंकि उससे पहले आपसे मतलब ये टेक्निकल जितने एस्पेक्ट्स सीख लेंगे, मैकेनिकल आप ज्यादा हो रहे हो। लाइक दैट। करेक्ट, मैकेनिकल हो रहे हैं। और दूसरा कि आप प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स फिगर्स पे बात करते हैं, लेकिन वो कहाँ बोलना है, कब बोलना है, किसके साथ बोलना है, किस लहजे में बोलना है, ये कब करेंगे? ये आपको लिटरेचर नहीं पढ़ाएगा, ये आपको आपकी खुद की समझ बताएगी, क्योंकि किस सिचुएशन में आप कैसे डील कर रहे हैं। दिस इज विच वी नॉर्मली कॉल क्रिटिकल थिंकिंग। तो वो आप एक्सपीरियंस के साथ ही लर्न करते हैं, और वो कोई सिखा नहीं सकता, वो सीखना पड़ता है। वो अपने आप से आता है।
ओके, नाइसली एक्सप्लेन मैम, और ये काफी ज्यादा लोगों को हेल्प करेगा जो अभी आपने कहा है. Thank you. ओके, हाउ डू यू टेलर योर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डिफरेंट ऑडियंसेस? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. या सो टेलर मेड कैसे करते हैं प्रोग्राम्स को इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोई भी आंसर तभी दे पाएंगे जब हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ओके, तो नाइस. क्वेश्चन अच्छे से समझना मीनिंग कि इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग माय कस्टमर्स रिक्वायरमेंट completely, then only I'll be able to design that training program or training module for the people. So यहाँ पे हम लोग बोलते हैं normally audience. So audience को understand करना is उनके aspirations देखने हैं कि what they expect from that training module, what are their learnings that they are going to have, or what are the takeaways they are expecting to have once they are completing that training program. तो understanding those key areas is important, और एक बार वो समझ में आते हैं तो accordingly we can map our program. Secondly, उनका क्या demographic है, किस background से आ रहे हैं जो आपके participants हैं, उनका क्या age है, क्योंकि age के according फिर जो आपके case आप लोग उसमें that I'll be sharing in my program, that I can design accordingly. उसमें क्या एग्जाम्पल शेयर करने हैं, क्योंकि अगर मैं कॉर्पोरेट में जा रही हूँ और वहाँ पे मैं कार्टून्स के एग्जाम्पल्स दूंगी, दैट विल नॉट बी रेलिवेंट. सो अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, विच आई डू बिफोर हैंड. और वो करने के बाद जैसे कुछ जो आपके ऑडियंस आ रहे हैं उनके नाम आपको पता है, तो दैट गिव्स यू मोर रिलेटिविटी विद पीपल. तो उनका बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है. ओके, डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग ट्रेनिंग सिचुएशन यू हैव एनकाउंटर्ड एंड हाउ यू हैंडल्ड इट. दैट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मतलब आपके साथ अब हमेशा तो एक अच्छी ऑडियंस नहीं रहेगी, अच्छा सवाल पूछने वाला नहीं रहेगा, तो चैलेंज वहां भी आया हुआ है स्पेशली. हाउ यू हैंडल्ड इट? कई बार लोग बिल्कुल मतलब पेशेंट नहीं है और वो ज्यादा नहीं सुनते हैं. So in that situation actually you have to be so much calm and content at that time. How did you do that? Exactly. सिचुएशन तो बहुत होते हैं, लेकिन एक जो मैं शेयर करना चाहूंगी कि देखिए जेनजी है, जैसा हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, समझ की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. तो एक मतलब मेरा जो सेशन था इट वाज मोर अबाउट कॉर्पोरेट एटिकेट्स एंड एथिक्स. तो वहाँ पे एक आया कि हाउ यू नीड टू ड्रेस अप व्हाइल यू आर इन ऑफिस और इन कॉर्पोरेट लाइफ. तो वहाँ पे मैंने शेयर किया कि आपको अटायर ऐसा पहनना चाहिए विच शुड नॉट बी वेरी रिवीलिंग, जो आपका कवर करे बॉडी को प्रॉपर्ली, और इट शुड बी सूदिंग टू अदर्स आल्सो. Oh my God! And at that time, I'm trying to understand. Correct me if I'm wrong. So okay, at that time किसी के ऊपर वो personally अब उसको लगा ना actually what I'll choose what I want to wear. It was something like that. This was something like this actually came from that. तो एक लड़की खड़े होके बोली, मैं क्यों किसी की बात मानूं, या मैं क्यों किसी की चॉइस का कपड़ा पहनूं, मैं 18 इयर्स की हूं तो मेरे को जो मन करेगा वो मैं पहनूंगी. मैंने कहा बिल्कुल आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन एक ये बता रहे हैं कि ये करोगे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी आपकी चॉइस है. सो दिस इज हाउ आई अकॉर्डिंग टू द स्पेस स्पेशली यू वर टेलिंग. हाँ. So, but this is to be understood by us and by Gen Z also, that it is not about imposing our things. अभी मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में या जो बॉलीवुड कहते हैं उसमें लोग हैं, sure. when they are starting their career they come up with so weird dressings. I will not name out people here. Definitely. I'm understanding the idea especially. तो वो just to gain attention. And they are actually telling it that that is the creativity. I don't think that is the creativity. It is not on the creative level. Yeah. Or even it is not for the project. Even it is not for the movie. In fact, if you are playing a character, but actually you are doing it in real life. As you mentioned, exactly. They're doing it for the popularity or something like that. Popularity, absolutely. तो वो कहीं ना कहीं शायद हम लोग को थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे अनचाहे ये लोग जो नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन है उनको इंस्पायर तो करते हैं. Yes, definitely. इन्फ्लुएंस भी कर देते हैं. बिल्कुल. Okay, so you handle that situation very well. Yeah, I had to, because वहाँ पे as a senior I cannot lose my temper. बेशक आपको गुस्सा आ रहा है, but you cannot reflect that on your face. तो ये सिचुएशन हुआ था जहाँ पे yes nicely I managed with that girl. Okay. तो फिर बाद में कभी ऐसा नहीं होता अलग से
तुम मुझे अलग से मिलो, तुम बाहर मिलो, मैं तुमसे बात करती हूँ, ऐसा वो कुछ भी होता है हुआ कभी? था एक्चुअली। ये भी मैं बताऊंगी, रिसेंटली हुआ था एक सेशन में। थोड़ा फन राउंड भी तो हो ना, कुछ नया पता चले हमें। बिल्कुल। तो जैसे टॉपिक्स बच्चों को बोले थे कि आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करिए, और एक स्टूडेंट ने बिना अपना नाम दिए और उसने एक थोड़ा सा टॉपिक ऐसा लिख दिया कि जो वो शायद एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हो या क्या, उसने लिखा एबॉर्शन पे कोई बोले। ओके, ठीक है। तो इट वाज इन अ क्लास ऑफ मोर देन 50 पीपल जहां पे ये हुआ, और आई कुड मेक आउट कि किस बच्चे ने लिखा है। Okay. तो विदाउट टेलिंग हिम मैंने पूरी क्लास के सामने बोला कि एक टॉपिक ऐसा भी आया है मेरे पास जहां पे स्टूडेंट जानना चाहता है कि एबॉर्शन के बारे में क्या। तो फिर मैंने लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर बॉय, मैंने उसको वहां से ही बोला कि the one who want to know about it, please come and meet me. I will tell him step by step how it happens, what it is, why it is happened, why it is needed, and what can be done. और पूरी क्लास को भी मैं एड्रेस कर रही थी, बट आई वाज स्टेयरिंग एट दैट बॉय। पर्टिकुलरली अपने इंडायरेक्टली कह दिया तुम मुझे बाहर मिल। वो मिला आके, ट्रस्ट मी अभिनव, वो लड़का आया, उसने मेरे को सॉरी बोला कि सॉरी मैम, मैं मेरा वो इंटेंशन नहीं था। मैंने कहा मुझे मालूम था तुमने लिखा है, और आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर टू यू कि यू नीड टू बी डिसेंट वाइल यू आर इन पब्लिक फोरम। बिकॉज अगर एक मेडिकल स्टूडेंट बोल रहा है या आप मेरे से आके बोलते मेरे को इसके बारे में जानना है, आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर। दैट इज राइट इफ यू वांट टू नो। करेक्ट। बट उसके लिए फिर आप सही तरीके से सही जगह पर आप पूछो तो ज्यादा बेटर है। इफ यू रियली वांट टू नो कि मुझे सच में नहीं पता है, एंड व्हाट इज दैट, सो दैट वुड हैव बीन अ डिसेंट टॉक। लेकिन अगर आप उसको हिडन वे में पता करना चाहोगे तो यस, आई एम ऑल्सो यू नो सीनियर टू यू। I know that much smart that I know actually how you're doing it. So yeah, such thing happens you know with people. Definitely in the field. So वो कहते हैं ना कि नरम गरम दोनों ही होना पड़ता है, so depending upon the situation especially. Okay, how do you stay updated on the latest trends and best practice in soft skill development? Yeah, so to update self, one is you know reading some books, और we have group of trainers also जहाँ पे WhatsApp groups हैं, और वहाँ पे हम लोग जो भी कोई नया टॉपिक आया है, मॉड्यूल आया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ जो उसके बारे में, जो भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन है वो शेयर किया जाता है, और अगर जरूरत होती है तो हम लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं, इंडिविजुअली भी, नॉट ओनली ऑन ग्रुप। उसके अलावा जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, ट्रेन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, so I attend those programs also. So these are few methods and ways by which I keep myself updated. Yeah. Okay. What methods do you use to assess the effectiveness of your soft skill training programs? जो भी अगर आप मेथड यूज करते हैं, if you can tell us one or two. Yeah. So methods, see आज की डेट में पहली बात तो कोई भी लेक्चर बेस्ड सेशंस नहीं चाहता है, वन वे उसको नहीं रख सकते हैं हम लोग। सो वी जो बोलते ना, पहले था सिर्फ इट वाज एजुकेशन होता था, लेकिन आज की डेट में एजुकेशन के साथ में सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे एंटरटेनमेंट भी हो। yes. तो दिस इज वी हैव कॉइन्ड अ न्यू टर्म, एजुटेनमेंट। अच्छा, जिसको मैं स्पेशली अपने शो में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अब आप भी सही कह रही हो, वी आर ऑन द सेम पेज, कि जब मेरा शो चलता था वीडियो जॉकी वाला, तो बोलते थे कि आप इन्फॉर्मेशन अच्छी देते हो। मैंने नहीं, मैं इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, एंटरटेनमेंट भी देता हूँ, इसलिए इन्फोटेनमेंट लेकर आता हूँ मैं। इट्स लाइक दैट यू आर कहने एजुटेनमेंट। तो वहाँ पे एजुकेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, तो उसको हम लोग एक्टिविटी बेस्ड सेशंस करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट वेज से छोटे छोटे उनके लिए एक्टिविटीज क्रिएट किए जाते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसके वे में लर्निंग होता है। क्योंकि अगर किसी भी कैंडिडेट का, यार आप देखेंगे लर्निंग हम लोग स्ट्रेस सिचुएशन में ज्यादा नहीं ले पाते हैं। अगर आपका माइंड रिलैक्स्ड है तो लर्निंग का जो इंटेंसिटी है वो हाई हो जाता है, वेर इन स्ट्रेस सिचुएशन में इट विल बी, आप किसी के प्रेशर में हो, किसी काम के प्रेशर में आपको जल्दी करना है, तो आप सुन तो लोगे, हाँ, लेकिन आप उसको इतनी अच्छी तरह से रिसीव नहीं कर पाओगे, रिसीव नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली। तो जो मॉड्यूल्स रहते हैं वो एक्टिविटी ओरिएंटेड रहते हैं, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के गेम्स क्रिएट करते हैं, क्विज क्रिएट करते हैं, या कोई भी एक्टिविटी उसके वे में अपना मैसेज कन्वे करते हैं। ओके।
How do you incorporate technology into your soft skill training programs, if at all? I mean, I know actually you are doing it, क्योंकि आप तो PPT भी यूज कर रहे होगे, आपको तो वीडियोस भी दिखाने हैं, Correct. और काफी सारे लोगों से डिस्कशंस भी करना है. So do you use that technology? आज की डेट में विदाउट टेक्नोलॉजी तो काम हो ही नहीं सकता. बहुत सारी जगह इट्स नॉट ओनली अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, लेकिन लोगों का मानना होता है कि अगर मैं ह्यूमैनिटीज साइड से हूँ, आर्ट से हूँ या लॉ बैकग्राउंड में हूँ, तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है. लेकिन देयर इज नो एरिया विच इज अनटच्ड विद टेक्नोलॉजी. डेफिनेटली. अब तो लॉ में आ गया है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. डेफिनेटली. तो जो मेरे सेशंस में आप बात करें सॉफ्ट स्किल्स में, हम उसको कैसे यूज करते हैं, यूजिंग वीडियोज विच यू हैव ऑलरेडी टोल्ड. वीडियोस करना है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाना है या कुछ कंटेंट भी लेना है, तो आज चैट जीपीटी भी है, उसका भी कहीं ना, आई विल नॉट डिनाई कि उसका हम लोग सपोर्ट नहीं लेते हैं. आई टेक दैट सपोर्ट आल्सो. तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है ट्रेनिंग्स में. और कई बार जैसे वीडियोस वहां पे ड्यूरिंग द सेशंस अगर दिखाने हैं, उसके ऊपर अगर कुछ क्विज यूज करना है या उसके बाद डिस्कशंस करना है. डिस्कशंस करते हैं हम लोग जैसे वीडियोस के ऊपर, या कोई वोटिंग कराना है, कोई सर्वे का इमीडिएटली रिजल्ट लेना है, तो ये सारों में अपना टेक्नोलॉजी का यूजेस होता है स्पेशली. ओके. State your thoughts on women empowerment and also tell the wrong use of the law for it. Especially that is an important question for me. और ये personally मैंने अपनी तरफ से रखा है, जानना चाह रहा था, because right now in these days you are seeing कि law जो स्पेशली पहले women empowerment के लिए बनाया गया था, उसका सबसे ज्यादा गलत यूज हो रहा है. You can see it in the field of the law, in the field of the justice, on even YouTube, on even Instagram. आपको हर जगह ऐसी कुछ ना कुछ रील्स और वीडियो देखने को मिल जाएंगे. एनीवे लॉयर्स ने अब ये बात कही है कि जितने ज्यादा केस अभी तक आ रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, उसमें से कई ज्यादा केस फेक होते हैं और झूठे होते हैं. व्हाट यू से अबाउट दैट? बिल्कुल. देखिए, मैं तो आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि लॉ का बहुत मिसयूज हो रहा है. yes. क्योंकि हम लोग हमेशा सुनते, मतलब मैं शायद यहाँ पे बहुत कन्वेंशनल या ओल्ड स्कूल थॉट साउंड करूंगी, बट ये मेरा पर्सनल थॉट है. जी प्लीज. क्योंकि पहले हम लोग अपने बचपन से देखते आए हैं कि जो औरत है या नारी है, उसको हमेशा हमने बेचारा करके ट्रीट किया है. यस, डेफिनेटली. तो वो थॉट आज तक भी, आज की नारी का भी वो थॉट तो खत्म नहीं हुआ है. लेकिन उसके साथ में जो उसको इंफॉर्मेशन मिल गई है या जो उसका अपडेशन हो गया है कि मेरे ये सारे राइट्स हैं. Oh yes. I'm having complete right on my husband's, all the assets, और उसका पूरा सैलरी मेरे पास होना चाहिए. लेकिन अगर मैं कमा रही हूँ तो मेरा सैलरी उसके पास नहीं जाना चाहिए. yes. तो ये जो डिसअलाइनमेंट है, ये मेरे को लगता है कि एक मुसीबत की जड़ बन रहा है. yes. क्योंकि हम लोग राइट्स पे तो बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन ड्यूटीज जो हैं उस पे कहीं कोई ध्यान नहीं है. You're quite right about that. और जिसकी वजह से ऐसे केसेस आ रहे हैं कि मेरा एक स्टूडेंट था, उसके फादर ने एक केस फाइट किया था. हिज फादर वाज लॉयर. ओह माय गॉड. और एक बच्चे की शादी हुई और लड़की ने उनको डोरी के केस में पूरा मीडिया वगैरह सब बुलाया. डोरी के केस में वो लड़का, सबसे जो फेमस इस वक्त केस चल रहा है वो यही है. हाँ, yes. पूरी फैमिली उसकी जेल में बंद हो गई. और इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, एक्चुअली नहीं किया था. बट क्योंकि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉ हैं, कहीं ना कहीं वो वुमेन को ज्यादा फेवर करते हैं. क्योंकि एक टाइम पे रहा होगा, मैं ये नहीं बोलती कि नहीं होगा, पहले कभी रहा होगा. बट हम लोग वहां से निकलने का तो नहीं सोच रहे हैं. और जो आगे बढ़ चुके हैं, वो चीज को जो डिसअलाइनमेंट हो रहा है ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम तो आ रही है कि मिसयूज तो हो रहा है लॉज का. और थैंक गॉड अभी कोर्ट का भी, कल ही मेरी एक लॉयर से बात हो रही थी जो हमारे एक फैकल्टी में, उन्होंने बताया कि अब तो थैंक गॉड स्टडी हो रहा है कि सीपीआरसी और काफी ज्यादा धाराओं में चेंज भी हो रहा है. और कोर्ट ने भी अब ये ऑर्डर कर दिया है कि नहीं, आप सिर्फ कंप्लेंट पर नहीं अरेस्ट कर सकते, आपको अब स्पेशली इन्वेस्टिगेशन करना होगा. बिल्कुल. इफ इट्स राइट तो ठीक है, आप एक्शन ले सकते हो. अगर ये राइट नहीं है तो सीधे सीधे फेक केस बनेगा. देखिए, मतलब मैं थोड़ा सा और एक पहलू आपको सामने रखूंगी कि आप देखिए कि जो पुरानी फीमेल्स थी या वुमेन थी, उनमें सेंसिटिविटी बहुत हाई थी. ओह डेफिनेटली. इवन टॉलरेंस वाज सो मच. वही टॉलरेंस थी, वो एम्पैथेटिक होते थे. आज भी होंगे, लेकिन पहले हम लोग केस कैसे सुनते थे कि उस माँ ने दूसरे का बच्चा बचाने के लिए
अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी। यस यस, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, वो दाई माँ थी एक, पन्ना धाई, करेक्ट, जो फेमस स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी है। तो पन्ना धाई ने अपने बच्चे की बलि दी क्योंकि राजा के बेटे को बचाना था। लेकिन आज की डेट में हम जो वुमेन एम्पावरमेंट ये बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लीग से हट रहे हैं। और वहां पे देखिए, जैसे अभी रिसेंट केस जो आया है, सूचना वाला केस, गोवा में जो लेडी ने अपने बच्चे का मर्डर कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि वो फादर से ना मिले, ठीक है। या जो इंद्रानी केस बहुत हाईलाइट हुआ था कुछ टाइम पहले। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं हम लोग एम्पावर होने के चक्कर में, या हम लोग ये एक डिल्यूजन में है कि हम एम्पावर हो रहे हैं, हम अपने बेसिक रूट से अलग हो रहे हैं। Definitely, we are so much agree with that. Also the incident कि ठीक है, जिसके साथ जो गलत हुआ है, गलत होता होगा, आज भी हो रहा है डेफिनेटली, तो उसके सपोर्ट में हम बिल्कुल हैं। हाँ। और उनके साथ ही खड़े हैं, डेफिनेटली हम उस साइड पर हैं उनके। बट हम उस साइड भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आप उस कानून का गलत यूज कर रहे हो, या आप उसको गलत तरीके से स्पेशली किसी के ऊपर झूठा केस कर रहे हो और वैसे यूज कर रहे हो। क्योंकि सी वेयर इज अ प्रॉब्लम, मुझे ये लगता है मैम, और एक ही प्रॉब्लम रही है, अंशुल जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैंने जितना अभी आपने इंग्लिश में पढ़ा, वो वाज एक्चुअली द नीड ऑफ द फेमिनिज्म। अब फेमिनिज्म के जितने राइटर हैं, समुद्र बोवार रहे हैं, या और भी ज्यादा जितने राइटर रहे हैं, उन्होंने इसके लिए, जैसे सिल्विया प्लैथ, उन्होंने इसके लिए जब आवाज उठाई, तब सिचुएशन से लगती है। और उनकी डिमांड क्या थी? बिल्कुल, उनकी डिमांड कभी कपड़ों के ऊपर नहीं रही। हाँ। उनकी डिमांड रही राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, क्योंकि उन्हें एजुकेट नहीं होने दिया जाता था, वोट करने नहीं दिया जाता था, राइट फॉर द ट्रीटमेंट, राइट फॉर द हेल्थ, राइट फॉर द फूड। उनकी बेसिक नीड के लिए जो सही वैचारिक लड़ाई जिसको कहें, या आइडियोलॉजीज थी, वो बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में थी। और वो चाह रहे थे कि हम चाहते हैं कि विमेन भी एजुकेट हों, क्यों ना हो, आप कब तक चार दीवारी में उनको अंदर रखेंगे, होना भी चाहिए। तो वो एक बिल्कुल क्लियर थॉट था, बिल्कुल। तो बट अब एक्चुअली उसके माने क्या होता है, कई सारे लोगों को स्पेशली एक तो ये नहीं पता होता कि व्हाट इज द फेमिनिज्म, जो कि एमा वाटसन ने बहुत अच्छी स्पीच दी थी यूएन में, कि फेमिनिज्म इज लाइक दैट फॉर ही फॉर शी और शी फॉर ही, कि वो एक इक्वलिटी है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऊपर है कोई नीचे, ऐसी कोई बात नहीं, वो एक इक्वलिटी है। अगर आप उस इक्वलिटी को चाहते हैं, तो कम से कम वो सारे के सारे रूल्स सबके लिए बराबर रखें। शी वाज मीन टू से दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात आप बोल रहे हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ है? अभी रिसेंटली न्यूज है कि नेवी में भी जो विमेन वीर वाला है, अग्निवीर, यस, है ना, गर्ल अग्निवीर को इंडक्ट किया जाएगा। दिस इज विमेन एम्पावरमेंट। डेफिनेटली। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही एरिया में रहे हैं, एज यू नो फ्रॉम आवर कंट्री, के सबसे बड़ा उदाहरण तो किरण बेदी, जिनसे आप मिल चुके, वो हैं। सुनीता विलियम्स गई, कल्पना चावला गई, और वो हर एरिया में गई हैं, इवन मतलब पार्लियामेंट्स में गए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो प्रेसिडेंट देखिए, वो सब हैं। तो सारे पदों पर तो अब सब जगह जा ही रहे हैं। सो नाउ एक्चुअली वी आर इंक्लाइंड टू डू दैट, कि अब हम इसको कितना ग्रेटनेस की तरफ ले जा रहे हैं, कितना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कितना ग्लोरी की तरफ ले जा रहे हैं। नॉट टू से दैट कि हम कितना मतलब रूट की तरफ दोबारा जा रहे हैं, और उन चीजों को लेकर चल रहे हैं, उनको कैरी करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। ओके, You said it very beautifully and very right. अब मैं आपसे कुछ और आपकी फील्ड के भी सवाल पूछूंगा. Also tell us about the sports activity and challenges of youth they are facing now, because you have been also into the sports. Correct. हाँ, बिल्कुल मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ. मैं नेशनल लेवल जूडो प्लेयर रही हूँ. मैंने अपने स्टेट राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है नेशनल ओपन चैंपियनशिप्स में. और वहाँ पे जो देखिए, किसी भी गेम का, मैं खाली अपने गेम की बात नहीं करूंगी, हर गेम का एक बहुत बड़ा जो लर्निंग होता है. जूडो में स्पेशली सबसे पहले जो हम लोगों को सिखाया गया था, फॉल लेना, कि आप अगर गिर रहे हैं तो अपने आप को सेफगार्ड कैसे करते हैं. इट वॉज नॉट अबाउट विनिंग, इट वॉज मोर अबाउट व्हेन यू आर फेलिंग हाउ यू आर गेटिंग बैक. सो विच एवरी स्पोर्ट्स टीचर्स. आप कोई भी गेम में देखिए, जो स्पोर्ट्स पीपल होते हैं उनका एक मेंटल स्ट्रेंथ बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनका सोचने का तरीका डिफरेंट होता है. उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि वो फिजिकली तो ट्रेन हो रहे होते हैं, बट इम्प्लाइड वे में मेंटली उनका जो एक स्ट्रेंथ है, जो एनर्जी है, उसको कहाँ यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, दिस इज व्हाट दे लर्न ड्यूरिंग देयर स्पोर्ट्स ऑल्सो. सो दिस इज व्हाट इज माई लर्निंग when it comes to sports. और आज के यूथ का जो एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है. देखिए, पहले जो हमारी लाइफस्टाइल थी, उसी तरीके के सिकनेसेस आते थे, उसी तरीके की बीमारियां थी.
पहली लाइफस्टाइल थी कि लोग खेत में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो किसी को फीवर आ गया, जॉन्डिस हो गया, ठीक है। आजकल आप देखेंगे लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। आजकल का जो यूथ है वो कन्फाइंड हो गए हैं, दे आर ग्लूड टू देयर स्क्रीन। वो सिर्फ अपने मोबाइल, टीवी इनसे अटैच्ड हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उनके थाउजेंड्स फ्रेंड्स होंगे, लेकिन बात करने के लिए उनके पास मुश्किल से मिलेंगे, राइट। तो उसी टाइप की बीमारियां भी आ रही हैं। आजकल बीमारी कैसी हो रही है? इम्प्लाइड हो रही है, हिडन हो रही है, मेंटल सिकनेस आ रही है। they have the anxiety, stress and especially the depressions nowadays. डिप्रेशन तो, और ये कुछ एक उनको ना फैंसी वर्ड्स भी बना लेते हैं। मतलब एक टाइम पे मैं इंसिडेंट कई बार शेयर करती हूँ। एक 4 साल की बच्ची को मैंने बोलती हूँ आज तो मैं डिप्रेशन में हूँ। 4 साल का बच्चा जिसको मालूम नहीं है डिप्रेशन क्या है, तो उन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि आपके मन में थोड़ा सा भी कुछ हलचल है तो दैट इज नॉट डिप्रेशन। और जिसकी वजह से बच्चे आप देखिए कितने मतलब बहुत सैड केसेस होते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। Oh, definitely. Yes. गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, they are committing suicide. So what is this? Life is much more than the breakup of the love relationship or affair. Or maybe passing into any exam. आजकल तो बहुत रिलैक्स्ड हो गया अपना एजुकेशन सिस्टम भी। easily kids are able to score 90%, 100%. Definitely with the new education policy. With new education policy. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो अच्छा एक पैरामीटर है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बहुत वहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया है। Yes, definitely. तो आई थिंक अपने यूथ के साथ भी ये बहुत जरूरी है कि उनको मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी फिर से एक और क्वेश्चन लूंगा मैम जी। I have heard that you do special social work and you have contributed to society. Please tell us about that. कई लोग उसके बारे में बात करते नहीं हैं या करना ही चाहते हैं, so you can tell us about that also. हाँ, so normally मैं बहुत इस चीज को हाईलाइट नहीं करती हूँ, लेकिन सोशल वर्क में काफी करती हूँ अपने इंडिविजुअल लेवल पे, जहाँ पे जैसे पहली बात तो सोशल वर्क का मीनिंग ये नहीं होता कि आप कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तभी कर रहे हैं। इट कैन बी इन एनी फॉर्म। आप किसी इंसान को जिसको जरूरत है आपकी किसी से बात करने की, अगर आप उसकी बात सुन रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज लाइफ। तो ये जो मैं सोशल वर्क करती हूँ वो जैसे हम लोग ओल्ड एज होम्स में जाते हैं, वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले उनको खाना दिया, या ऑर्फनेजेस में जहाँ पे मैं अटैच्ड हूँ वहाँ पे बच्चों के कपड़े देते हैं, या उनको फूड दे दिया, या उनको कभी एजुकेट कर दिया ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। दूसरा जैसे उनको करियर के लिए गाइड कर दिया कि आगे उनको क्या करना चाहिए, उनको बुक्स दे दिया, कोई बैग्स अवेलेबल करा दिए, या कई जगह पे जैसे जहाँ पे पहुंच नहीं पाते हैं तो उनके ऑनलाइन सेशंस कर लिए। तो इस तरीके से मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे काफी कुछ करती रहती हूँ सोसाइटी के लिए, बिकॉज दैट इज व्हाट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। ओह ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच इफ यू आर डूइंग इट, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू। इसके लिए हम लोग भी ग्रेटफुल हैं कि आप ये कर रहे हैं। और ये थे कुछ क्वेश्चंस स्पेशली आपकी फील्ड के, जो कुछ ज्यादा हो गए लेकिन स्पेशली जो सुनेंगे उनके लिए बहुत कारगर हैं, इसलिए ओके। अब मैं कुछ आपकी फील्ड के अलावा इतर क्वेश्चंस लेता हूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर आवर famous rapid fire round. Okay. What is the greatest lesson you learned from your students? From students? Yes. See, the greatest lesson from students is that I need to be updated on technologies also. Okay. Because this is one area wherein they are able to defeat me easily. Okay. If you had not been a professor or soft skill trainer, what would you be? Or who would you be? Yeah, so I would have been an IPS officer, which I told earlier also. Oh, definitely, yeah. Yes. Okay. How do you juggle your hobbies with your career? अब इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। आप जूडो आपने करना है जी, TEDx स्पीकर आप हो, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर आप हो, आपको इंचार्ज भी हैं आप बहुत सारे लोगों को हायर भी कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं। पहले मुझे ये बताओ, आप मतलब टाइम निकाल कहाँ से रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, करके आए हो आप? टाइम देखिए, एक तो फुल टाइम मेरा जो काम रहता है वो तो ऑफिस आवर्स में हो जाता है, लेकिन उसके अलावा जितना भी टाइम बचता है, शायद ही कोई संडे या सैटरडे ऐसा रहता होगा जहाँ पे मैं कुछ काम नहीं कर रही होती हूँ अदर देन माई रेगुलर वर्क। Okay. वही टाइम मिलता है, या कुछ ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं तो वो लेट नाइट आवर्स कर लेते हैं, तो ऐसा करके यस, क्योंकि दिस इज व्हाट गेट्स मी हैप्पी। या सुपर वुमेन का खिताब मतलब आपको अब देना चाहिए, इतना ज्यादा बिजी हो आप इतने सारे एक्टिविटीज में। मोर पीपल देन मी जो ऐसा करते हैं, बट या मैं कर रही हूँ थोड़ा बहुत कुछ अपनी तरफ से।
अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन फिर इस पर ये है कि फिर फैमिली की तरफ से फिर भी ये शिकायत कभी तो कभी आती होगी, क्या आती है कि नहीं, कि वो आती है कि भाई आप तो बिजी हो, हमें समय नहीं देते हो, आप सैटरडे संडे भी आप इतने बिजी हो, तो मतलब हम लोग है कि नहीं घर में, ऐसा कुछ होता है? नहीं, बिल्कुल होता है, ये बहुत जेन्युइन एक कंप्लेन भी है। लेकिन अभिनव क्या होता है, जो वर्किंग विमेन होती है ना, स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी होती है जब आपके बच्चे छोटे हैं, फैमिली नई है। Yes. और वो टाइम होता है जहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसको कैसे डील किया जाए। और क्योंकि अब मैं उस चैलेंज से आगे निकल गई हूँ, तो कहीं ना वो एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है इंटरनली, कि बहुत चीजों को लेके फर्क नहीं पड़ता। मतलब दिस इज, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, बहुत लेडीज शायद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगी या नहीं मानेंगी, बट दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी, कि आई बिकेम इम्यून टू सर्टेन थिंग्स। और काफी चीजें हम लोग जैसे घर में आउटसोर्स कर देते हैं, से फॉर किचन है, कभी घर पे बनाने के लिए हमने कुक को रखा हुआ है, तो वो टाइम मेरे को मिल जाता है जहाँ पे आई कैन गिव इट टू माय फैमिली और टू माय ओन यू नो लाइफ। सो एक्चुअली मैनेज योर टाइम। या, सो दिस इज हाउ आई। ओके, रैपिड फायर राउंड अब जिसके लिए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, एंड यू हैव आल्सो टोल्ड अस अबाउट योर हॉबीज, क्योंकि इतनी सारी हॉबीज आपकी हैं ही हैं, तो फाइनली मैं रैपिड फायर राउंड की तरफ मूव करता हूं, एंड यू आर रेडी विद दैट। ओके, बेस्ट एडवाइस यू गॉट इन योर करियर? बेस्ट, ओके, सो इट वाज ओखली में सिर दिया है तो मूसल से क्या डरना। दिस वर्ड्स हमारी तरफ तो बहुत चलती फेमस, जितना आपने मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल, तो ये एक मेरे को एडवाइस मिला था मेरे भैया से, ब्रदर से। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया ही था, क्योंकि मैंने मार्केटिंग चूज किया था, तो हम लोग को फील्ड में जाना होता था और मैं घबराती थी कि फील्ड में जाके गर्मी है, धूप है, कैसे करना। उसने बोला था हाँ कि व्हेन यू हैव चूजन अ फील्ड, सो यू नीड टू यू नो बियर द हीट ऑफ इट। Oh, definitely. So this is the advice which I received, or okay. So then actually you came through with it. Yes. Okay. The happiest moment of your life? So many. अच्छा, अभी तो अब इतने सारे आ चुके हैं कि अब ठीक है कि सारे ही हैप्पीएस्ट मोमेंट रहे हैं। हाँ. Okay. The saddest moment of your life? I mean, if you want to share. Yeah, it's a personal, you know, thing. Twice it happened. Okay. Yeah, I lost my sister, and recently I lost my father. So I think there cannot be any sad moment than this. Okay, we are sorry for that, ma'am. Yeah. Okay, the challenging moment of your life? Challenging. Apart from that, every day is a challenge. Every day is a challenge, but अभी ना मैं actually challenges को challenge की तरह नहीं देखती हूँ. I always find figure out for a solution. Oh, तो मुझे शायद लाइफ में ऐसा नहीं लगा कि ये चैलेंज रहा. चैलेंज होते हैं, वो कहते हैं ना, ताला आता है, चाबी निकाल बनानी होती है. Nice, very nice philosophy. Okay, your favorite actor? Favorite actor? अपने नाम ध्यान नहीं आ रहा एकदम से. देवानंद. देवानंद इज माय फेवरेट एक्टर. अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों अक्सर ये यार मैं बहुत बोला गया कि तुम बोल तो बिल्कुल वैसे हो. हाँ. वैसे तुम्हारा अंदाजा बोलने. मैंने कहा पता नहीं, मेरे बहुत पसंदीदा रहे हैं. मैंने कहा जो लहजा है ना, हाँ, लहजा वो एक्चुअली उनके वाला है. डेफिनेटली. तो मैंने कहा कि ये आता नहीं है, इन्फ्लुएंस इतना नेचुरली कुछ हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम डेबोनियर को फॉलो कर रहे हैं तो. ओके, योर फेवरेट बुक? ओके, बुक तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं रीड करी है, बट सबकॉन्शियस माइंड इज माय. द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. ओके, योर फेवरेट मूवी? गाइड. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. ओह वाओ, नाइस मूवी. फेवरेट फूड? स्टेपल फूड अपना घर का नॉर्मल फूड, दाल बाटी चूरमा. वाह, ये तो मेरी माँ क्योंकि राजस्थान से नहीं, तो दाल बाटी चूरमा मैंने उन्हीं के हाथ का खाया है. कमाल है. कितनी सारी चीजें मतलब कॉमन है. एक चीज ये हुई दाल बाटी चूरमा आपके मेरे बीच कॉमन. दूसरा है कि हम एजुकेशन फील्ड में हैं. तीसरा ये है कि आप भी ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे हैं. ये मुझे बिल्कुल याद था. ओके, योर फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन इवन इन इंडिया और इन द अब्रॉड? ओके, सो इंडिया आई वुड से दमन. Okay. Yeah. Daman. I like because we could spend better time there. So far yes. Daman. Okay, Daman. Okay. So there was a rapid fire round. अब हम लोग चलते हैं insights की तरफ. आपकी लाइफ के कुछ insights को जानते हैं. An idea that changed your life. Okay. So idea changed my life is, I would say, once told by my father. जब हम छोटे थे तब उन्होंने बोला कि लाइफ में कोई भी परेशानी आए, कुछ भी आए, जो करना है कर देना. कोई परेशान करे, हाथ पैर तोड़ देना, बस जान से मत खत्म करना. So बाकी मैं हूँ सपोर्ट के लिए. हाँ, बाकी मैं हूँ, पीछे देख लूंगा. Wow, wonderful. तो ये जो एक उनका इंस्ट्रक्शन था टू ऑल ऑफ अस, उसने ये एक आइडिया दिया या ये थॉट दिया कि लाइफ में
चैलेंजेस तो आएंगे, हम्म, बट उनको तोड़ के रख देना है बस और उनको उससे क्रैक ऊपर करना है, निकलना क्रश है। करना है और उससे आगे बढ़ना है. तो एक जो अपना फाइटिंग जो स्पिरिट है, दैट इज आई थिंक कम फ्रॉम मे बी वन ऑफ दीज सच सेंटेंसेस. Okay. How has success changed you? Success has made me more humble and has reduced my aggression, Okay. more patient, so and calmness also in life. Now you're content in your life. Yeah, contented. Okay. Great. और अगला क्वेश्चन ये है, दैट इज इम्पोर्टेंट वन. ओके, बेस्ट रोल ऑफ योर लाइफ, मदर, डॉटर, वाइफ और टीचर. Daughter. Daughter. Yeah. You have been the best daughter. Okay. I won't say best daughter. You are actually giving best in every role. हाँ, बट एक ये रोल है जहाँ से मुझे कंप्लेंट्स नहीं आई हैं ज्यादा. Okay. एज अ मदर, यस, आई हैड सो मेनी कंप्लेंट्स एज तो अ आप टाइम ही नहीं दे पाते होगे इतना. ओके. ओके, व्हाट हर्ट यू द मोस्ट? when I'm not able to satisfy anybody's expectations, that is what hurts me the most. And even when I go anywhere, I see so many people who are living in slums and all. So see, there are two things. One, I feel sad, and at the same time I feel good also about them. Sad I feel because I see that there are people who are living that life. So what I can do for them, so Okay. I feel guilty about it. Okay. And second, I feel happy because I see they are doing some hard work and they are earning for their life. Oh, that's great. So that gives me happiness. At least they are not into wrongdoings. Yes, Into they want to change their destiny, Right. especially by their work. Oh wow, oh wow. Okay. So there was a last question of the insights, and now I'm moving forward for this or that round. I think you're ready for that. Okay. Okay. Because right now, nowadays, you are actually watching in Gen Z, and especially with that cinema and OTT. So the question is related to also that. Okay. This or that round, veg or non-veg? veg, completely veg. Okay. Tea or coffee? Nothing, none of these. Okay. I'm a Milk. more of water person. वाटर पर्सन. ओके. या कोकोनट वाटर वगैरह ऐसा नहीं, बस सादा पानी. Water or maybe any juices and all. जूसेस एंड Yeah. ओके. चलो मैं अगली बार वो क्वेश्चन में ऐड करूंगा ऑप्शन. ओके, जिम और योगा? Gym. जिम. ओके, अर्ली राइजर और नाइट आउल? Night out. और उसके Completely. बावजूद फिर सुबह जगना भी पड़ता होगा आपको जल्दी जाने हाँ, के लिए. वो कंपल्सिव जगना है, बट अदरवाइज आई एम इन Night owl. नाइट आउल. ओके. इमोशनल और प्रैक्टिकल? Completely emotional. ओके. बुक्स और किंडल? Kindle. किंडल. ओके. रिलीजियस और स्पिरिचुअल? Very spiritual. माउंटेन्स और बीचेस? Beaches. लाइब्रेरी और क्लासरूम? Classroom. ओके. अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स? None of these. और या मतलब ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ कुछ अच्छा मिल गया मैंने देख लिया. If you watch movies. नहीं, normally I go with real talk shows या वो. So जहाँ पे भी learning होती है, I love learning from rather than movies. मेरे को to be means थोड़ा सा अलग है, but movies मेरे को लगता है waste of time अगर fictitious है तो. Real movie है, yes, I will go and watch that. तो you want to watch realistic movies especially? Realistic, yes. Okay, so यही सेम है ZEE5 और Disney Plus Hotstar के साथ कि जो आपको अगर कंटेंट अच्छा मिला, रियलिस्टिक मिला, so you will watch it. Then yes, I will watch. Okay, Peaky Blinders or Lucifer? I mean, if you watch any. No, none. Game of Thrones or House of Cards? Game of Thrones, I have seen it once or twice because my kids watch that. So only that. Not the real version. Actually, I was with the House of Cards. मुझे केविन स्पेसी वाला काम अच्छा लगा था. He is the Okay. president Frank Underwood. तो जिस तरह से डील करता है वो इस वर्ल्ड को, so I think, oh my God, that is the next level. Okay, Suits or Money Heist? Okay. Because actually you've been into the soft skill trainer in the TEDx. Suits तो वही हार्वी स्पेक्टर वाला. You watched the series, I hope so. या कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पर आपके पास कुछ ना कुछ वो आया होगा. हार्वी स्पेक्टर का कोट्स वो अक्सर आते हैं, वो रील आती है. Correct. Or the Money Heist, you know about that. Famous. So if you want to choose, if you don't watch it, but if you want to choose, तो आप किसको choose करोगे? Harvest. Harvey. The Okay, second Suits. one. About law. Law. And, yeah,
another one is Okay. So no issue. Money Heist. Okay. Okay, that's going on. कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, that's nice. So there was the especially questions in rapid fire round, then this or that, और आज की बात थी हमारी अंशु शर्मा जी के साथ, जो कि बहुत अच्छी गुजरी, बहुत ज्यादा गुजरी. I hope so कि आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा. And was a nice talk, nice interview, but I won't say interview, I would say discussions and interaction. So it was a nice meeting with you, ma'am. Actually, you came here, especially you gave a lot of insights about your life and a lot of learning to new students. So thank you so much for that. Thank you so much, Abhinav. It was really wonderful, talking to you. और मैं भी बोलूंगी कि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि आवाज आपने खुद बताया जो हाँ, so your voice is very similar to my favorite देवानंद जी. Thank you so much. और बात करके तो बहुत मजा आया and I'm really thankful to you for inviting me to this show. Looking My forward pleasure, to ma'am. Definitely looking forward to meet with you again. कि उसके बाद दोबारा हम लोग कुछ करें और अब इस बार पॉडकास्ट करेंगे. Not the special talk also. Sure. बने रहिएगा हम लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.